راج اور شاہ رخ خان، سیف علی خان، یہ لوگوں کا وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے. یہ مولوی اٹھا کر لے گئے بغیرت لوگ، ان کو شرم نہیں آتی ہے. وہ لڑکی کو عدالت نے ریکگنائز تو کر لیا کہ ہاں بھی اس کو غلط اٹھایا گیا. یہ ایک پاکستانی ہندو لڑکی جو مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید شی بلونگ ٹو مڈل کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی، اسی لیے تو پوری دنیا کے ہیڈ لائن بن جائیں گے. نمسکار دوستو، لوہاگڑھ ریئیکشن پر آپ کا سواگت ہے. میرا نام ہے دینا شرما اور آج ہم ایک ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں. یہ ویڈیو ہے، چینل کا نام ہے پاکستانی ملحد، جسے حارث سلطان بھائی رن کرتے ہیں. اور آج انہوں نے اپنی ویڈیو میں مائنورٹی کے اوپر جو پاکستان میں اتیاچار ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کی ہے. چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. وہاں پر بھی ہوتی ہے، وہاں پر بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جس لیول کی پرابلمز پاکستان میں ہے، یہ اسرائیل کو کہتے ہیں اپارتھائڈ سٹیٹ. یہ اپارتھائڈ سٹیٹ پاکستان ہے. کیسے؟ کوئی نان مسلم پاکستان کا ہائیسٹ آفس نہیں لے سکتا، یعنی کانسٹیٹیوشن کے اوپر لکھا ہوا. اور تو بہرحال یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں جو احمد شہزاد کی ویڈیو دانش کنیریا نے شیئر کی تھی، جس میں دانش کنیریا کہہ رہے تھے کہ چاہے ڈریسنگ روم ہو، چاہے پلے گراؤنڈ ہو یا ڈائننگ ٹیبل ہو، ہر جگہ پر مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام قبول کر لو. Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets to the. جب یہ انٹرنیشنل لوگوں کے سامنے نہیں شرماتے، جب انٹرنیشنل لوگوں کو یہ کہہ رہے، کیونکہ وہ پولائٹ ہے، ان کو میں مذہب کو اتنا ڈوگمیٹکلی نہیں دیکھا جاتا. جب وہ لوگ بیچارے کہتے ہیں چل نہیں سر ٹھیک ہے اوکے، برائن لارا کو آفر لگائی، برائن لارا نے کہا نہیں سر ٹھیک ہے، کوئی میری طرح کا ہو. بلکہ آج کل کے جو انڈینز ہیں ان کو کہہ کے دیکھو، انہوں نے کہنا اوے جہادیے، اور انہوں نے اور طرح کے الزام باتیں کرنی ہے. وہ ہماری پنجابی میں محاورہ ہے، جہو جے منہ ہوئے جی چپیڑ، تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اسی لیے محمد رضوان کو جب انہوں نے کہا کہ جے شری رام کے نعرے لگائے، بہت اچھا کیا. ان کو اسی طرح کی باتیں کرو. اور بلکہ اس کا ایک نقصان ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ جو انڈین ہندوز جو کہ وہ بھی اسی طرح کے مائل ٹیمپرڈ، کوئی زیادہ اپنا مذہب دوسروں کے اوپر نہ تھوپنے کا جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ بھی اور کٹر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے. کہ یہ اتنی کٹر ہے، نماز بیچ میں پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے اور کہتے ہیں جی ہندوؤں کے درمیان ہم نے نماز پڑھی، جیسے وقار یونس نے کہا. اس حساب سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں پھر ہم ان کے جیسا منہ ہے ان کو اسی طرح کی چپیڑ مارنی ہے. تو یہ دانش کنیریا نے بتایا. تو دانش کنیریا اگین کرکٹر ہے، ہائی پروفائل بندہ ہے، ایک سیلیبریٹی ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے. ہندو لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں، اغوا کر کے لے جاتے ہیں مولوی. ان کی ابھی ایک اور پرسوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جہاں پہ وہ لڑکی رو رہی تھی، اس کو زبردستی جبری اسلام قبول کر کے اس کو شادی کی. پھر وہ کیس عدالت میں گیا، بلکہ آپ کو ویڈیو دکھا ہی دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی، اس کو اٹھایا گیا. یہ سندھی میں اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہندو لڑکی بیچاری جوان لڑکی، یہ مولوی اٹھا کر لے گئے بغیرت لوگ، ان کو شرم نہیں آتی ہے. وہ لڑکی کو عدالت نے ریکگنائز تو کر لیا کہ ہاں بھی اس کو غلط اٹھایا گیا، لیکن پرابلم یہ چونکہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، اس لیے اس کو واپس ہندو گھر میں نہیں بھیجا جا سکتا. تو عدالت نے کہا کہ آپ کو اپنی فیملی کے پاس نہیں بھیجیں گے، جو حکومت کا جو ہوتا ہے نا، جو ایک ویلفیئر ہاؤسنگ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو رکھا جائے گا جب تک آپ کا یہ پورا کیس پورا نہیں ہوتا. تو کیا پورا کیس ہوگا؟ اب یہ کیا مرتد ہو جائے گی لڑکی جس کو جبری طور پہ اسلام قبول کرایا گیا؟ تو بہرحال یہ تو ہزاروں، ڈان کی رپورٹ کے مطابق 1000 کے قریب ہر سال اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن بیچ میں اور بھی ہندوز کی کیٹیگریز ہے. تو یہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی جو میرا خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، کہ ایک پاکستانی ہندو لڑکی جو مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید شی بلونگ ٹو مڈل کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی، اسی لیے اب وہ امریکہ چلی گئی ہیں. لیکن انہوں نے انگلش میں ایک ویڈیو ڈالی اور وہ وائرل ہوئی بھی ہے، جس سے مومنوں کو بڑی آگ لگ رہی ہے. اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، اچھا ہو رہا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے دانش کنیریا نے کیا، اسی طرح اور لوگ، ان کو ان کا منافقت والا چہرہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن نیچے آپ دیکھیں کوئی مسلمانوں کو شرم نہیں ہے، پاکستان کوئی ان کو شرم نہیں آتی. ہاں یار، ایک طرف تو ہم پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھو جی فلسطینیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. صرف ایک عورت مارچ ہے جو ان کے لیے تھوڑی بہت آواز اٹھا لیتی، وہ بھی ایک سیکنڈری ایشو ہے کیونکہ ان کا مین ایشو عورتوں کا. دوسرا میں ہوں، میری جتنی بھی چھوٹی موٹی سی آواز ہے بس میں ہوں. اور آپ کو کوئی مین اسٹریم میں سید مزمل نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، فیئر انف انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن باقی کے لوگ کوئی اتنی آواز نہیں اٹھاتے. تو سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. So, I am a Pakistani Hindu. I want to tell you something about my experience to my Muslim friends and to my Hindu friends, right? When I was little, like elementary, middle school, I was told every single day to convert to Islam. Every single day. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر دن مجھے کہا جاتا تھا
कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अब ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मैं ये बड़ी दफा बता चुका हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में गया था। हमारी हर क्लास में मोस्टली मेजोरिटी मुसलमान ही होते थे, 2-3 क्रिश्चियन होते थे। लेकिन चूंकि अथॉरिटी क्रिश्चियंस थी, हमारे टीचर सारे क्रिश्चियंस थे, इसलिए हमारा जो जेनेटिक मेकअप बनाया गया या हमारा माइंड जिस तरह बनाया गया वो इस तरह का दरसो तदरीज वाला नहीं था। हम अपने, जो मुझे याद है, अदील एक लड़का था, एक वकार लड़का था, वो क्रिश्चियंस थे, लेकिन उनको हमने कभी नहीं कहा कि हाँ जी क्रिश्चियन इस्लाम, तुम इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन अंदर से फिर भी एक वो था, यानी वो लड़के अलहदा से ही बैठते होते थे, उनके क्रिश्चियनों के आपस में दोस्त होते थे और हम, हमारे सारे मुसलमान दोस्त होते थे, फिर भी हमारे जहनों में ये चीजें थी और हम बड़े इनलाइटेंड लोग थे। लेकिन ये लोग, मैं जितने सिंध के हिंदुओं से पूछता हूँ, सारे यही बताते हैं, रोज हमें ये कहा जाता था इस्लाम कबूल। And I can put my hands on Shiv Bhagwan right now. I was told to convert. My brother was bullied. Brother was hit. My brother was forced to eat beef. अब किसी मुसलमान को खिलाओ ना जरा, वीडियो वायरल हो जाए, इस्लामोफोबिया का रोना माना कर दे, अगर इनको किसी मुसलमान बच्चे को जबरदस्ती और खिलाओ ना, बेकन खिलाओ, तो पूरी दुनिया के हेडलाइन बन जाएंगे। मुसलमानों से बड़ा विक्टिम कोई नहीं होगा। ये अपने मुल्क में ये करते हैं और इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। ये इसको डिनाई कर दें जितना मर्जी, जिस तरह वो अभी हमास ने खुद ही उनके रॉकेट से गिरा है अस्पताल पे, बल्कि अस्पताल का पार्किंग लॉट पे गिरा है, उन्होंने शोर मचा दिया, हाँ जी हाँ, और सारे मुसलमान अंधाधुंध उसकी उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं, क्योंकि अपने बंदे का इन्होंने साथ देना है, और जो इनके अपने गंदे काले कारनामे हैं उसको इन्होंने कभी नहीं मानना। So, and yeah, they would try to put beef in my food too, but I was too smart for that. So, you know, I didn't say anything at that time because I was really scared. We were a minority. Imagine करो बेचारी क्या कहेगी, कैसे गुस्ताखी का इल्जाम बच्चों के ऊपर भी यहाँ पे 8 साल के बच्चे को भी, वो याद है आपको, 8 साल के बच्चे को भी इन्होंने गुस्ताखी के केस में अंदर कर दिया था। फिर वो पूरी दुनिया में जब खबरें लगी तो फिर इन्होंने वो केस वापस किया था 8 साल के बच्चे को। तो ये जब ये बच्ची थी, इसका भाई बच्चा था, अगर ये कुछ कहते आगे से, एक तो पहले मार पड़नी थी, अगर लिंचिंग से बच जाना था तो उनको और सारी जिंदगी इन्होंने बेचारों ने छुप के रहना था, या गुस्ताखी का मुकदमा हो जाना था इनके ऊपर या इनके माँ बाप के ऊपर। ये बदमाशी चलती है पाकिस्तान में आए रोज। और अगेन मैं ये फिर बता दूं, ये थोड़े मुझे मिडिल क्लास की लड़की लग रही है, अच्छे, यानी लग रहा है कि इनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे स्कूलों में भेजा होगा, जहाँ पे बच्चों के जहनों में ये डाला हुआ है तुमने जाके इस्लाम लोगों को, काफरों को मुसलमान करना, तो यही होना है और क्या होना। ये कौम ही बिगड़ी हुई है, ये कौम क्या, ये उम्मत आवे का आवाज सर से लेके बॉटम तक बेड़े घर के इन लोगों। You are a minority religion, not gonna say anything, right? I did learn another thing from that experience was that people will use religion to hate on communities, because I was also called a kafir, right? I don't care. Yeah, I'm a kafir. I don't follow your religion. Like, duh. उसी तरह जिस तरह हमें बड़े मजे से मुंह आड़ के कहते हैं ना, मुर्तद, जैसे हमें बड़ा गुस्सा चढ़ना है, मुर्तद बड़ा तेरा मौलवियां दे नाल बैठ के घंटा लुकन मिट्टी खेडने वाले ने मिलते ही नहीं है, कितने ने मौलवी साहब के साथ गायब है। वो छोटा अब्दुल किधर है जी? वो गायब है, मौलवी साहब के साथ लुकन मिट्टी खेल रहे थे, 1 घंटा हो गया है, मिले ही नहीं। हमें जैसे बड़ा कोई फर्क पड़ता है मुर्तद कह के या काफिर कह के। Like, do you think I don't know what kafir means? Like, I'm born in Pakistan. And here's one more thing I want to address because people are so stupid. You know I'm a Pakistani Hindu. So I know about, I have read the Quran. I know about the Islamic teachings. I was in a Catholic school, a Hindu. And अच्छा, ये कैथलिक स्कूल में थे, यानी ये अच्छे अपनी तरह से उस स्कूल में थे जहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए था। I was forced to learn the Quran. And you know why? That because they said I was not going to pass the 10th grade, 11th grade, or get into the board exams. I would have to give the board exams for, like, you know, the Islamic teachings, whatever. So I was forced to learn it. So when you guys tell me at this age in America, by the way, I'm still being asked to convert in America. So when you're telling me, ये मोमिन का कीड़ा मरते दम तक नहीं जाता, इस्लाम कबूल कर लें जी, हमारा मजहब बड़ा जबरदस्त है, हमारे प्यारे नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी की थी, वो ऊपर उड़न घोड़े पे बैठ के ऊपर स्पेस में चले गए थे, बड़ा जबरदस्त मजहब है हमारा। अगला बंदा अगर पोलाइट होता है, वो आगे से कहता है नहीं सर, शुक्रिया सर, हम खुश अपने हाल में। नहीं, आपको इतनी अच्छी बातें बताई हैं हमारे प्यारे नबी ने, 11 शादियां उनकी, एक रात में सारी बीवियों के साथ। मैं फिर ज्यादा बोलूंगा इनको, तो तब भी इनको इज्जत रास नहीं आती। ओ मामे, अपना मजहब तुम्हें जितना अच्छा लगता है अपनी जेब में रखो। to convert a Pakistani Hindu to convert. Do you think I don't know? Do you think I don't know your religion? I think she knows a lot about your religion. I think उसको सब पता है आपके मजहब में। ये सारी जो बातें भी मैंने बताई ना, वो सब पढ़ चुकी है। मुसलमानों का ये बड़ा मजे का कीड़ा,
बड़े मजे से बातें हैं, आप लड़की हैं, आप खातून हैं, इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन। वो कहती है अच्छा चलो लेट मी डू सम रिसर्च। वो रिसर्च करती है। अच्छा इनकी वीडियोस पड़ी नहीं है कि जब किसी औरत को इस्लाम की तबलीग करो ना तो उसको मार कुटाई वाली, उनकी इनहेरिटेंस आदि है, मल्टीपल बीवियां लौंडियां, ये वाली बातें ना बताओ। पहले उनको अच्छी अच्छी दूसरी बातें बताओ, फिर जब वो उनका दिल तुम्हारी तरफ माइल होना शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बताओ। जब वो कलमा पढ़ लें फिर बाद में बताओ, और फिर उन्होंने कहा सॉरी अब आप वापस नहीं जा सकती हैं, यहाँ पे खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। तो तब वो बेचारी फंस जाती हैं। लेकिन जब कोई थॉरो रिसर्च करता है वो कहता है वो अड्डियां भैड़ियां गल्लां लिखियां ने इच, लौंडियां मुबारक, 4-4 बीवियां मुबारक, बीवी की पिटाई मुबारक, हर चीज ओहो। फिर वो बेचारे डर के मारे, क्योंकि मुसलमानों के अंडर होते हैं, वो फिर कहते हैं नहीं सर मैंने पढ़ा बहुत है, आपका मजहब बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नहीं, मैं सोच रहा हूँ। इस तरह की ड्रामेबाजी करनी पड़ती है उन्हें बेचारों को। मुझे लगता है ये भी बेचारी she seemed obviously smart enough to have understood all of that, लेकिन इसने कहा होगा नहीं रहने दे। I know your religion, I know the fundamental aspects of it. I respect that you follow it, but let me make it very clear that I will never, ever follow your religion. Why? ये नहीं बताएगी, मैं बता दूंगा। Because अगर आप औरत हो और इस्लाम के डिफेंड करते हो या उसको सब्सक्राइब करते हो तो ये ऐसे है कि मुर्गी जाके KFC को अपना माई बाप बना ले, कि देखो यार जबरदस्त, KFC से ज्यादा अच्छे हमें हकूक कोई नहीं देता। क्या हो गया अगर हमारी एंड में वो गर्दन उड़ा देते हैं, लेकिन जब तक गर्दन नहीं उड़ाते तब तक हमें बाजरा तो डालते हैं ना। And that is the utmost respect. That is with utmost respect. I will never. आप देखो बेचारी वो अमेरिका में रहते हैं, अभी फिर भी बेचारी रिस्पेक्ट से बात कर रही है। इसीलिए जरूरत है एक्स मुस्लिमों की, इसीलिए जरूरत है जेहो जे मुंह हो जिच पे। जब आपको कोई औरतों के बड़े हकूक हैं, लौंडीबाजी हकूक है। Follow your religion, okay? Because I just don't believe in anything that is taught there, and that's fine. People can have different beliefs, right? नहीं, मोमिनों को ये बात समझ नहीं आती, उनको नहीं ये समझ आती। जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा नहीं आ जाएगा तब तक इनको चैन नहीं आएगा, क्योंकि इनकी प्रोफेसी है। क़यामत आने से पहले पूरी दुनिया में पहले मुसलमान कम होंगे, फिर पूरी दुनिया में मुसलमान फैल जाएंगे, ये इनकी होंगियां लिखी हुई लोगों ने। Right? Religion is not about compulsion. That is one of the things in there. No, it's not. नहीं। Compulsion is what I felt in that country. So no, I don't believe in the fundamental aspects of it. तो ये बैरा तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, हारिस भाई ने अपनी वीडियो में जिस लड़की की वीडियो दिखाई थी वो पहले पाकिस्तान में रहती थी, हिंदू लड़की है, अब वो अमेरिका में जाके सेट हो गई है। तो उसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक क्या क्या हुआ, किस तरह स्कूल में पढ़ते समय और उसको साथ के स्कूल वाले बच्चे अड़ोसी पड़ोसी किस तरह दबाव बनाते थे कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, हमारा मज़हब बहुत अच्छा है, ये और वो है। तो इस तरह से पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ में इस तरह का सलूक किया जाता है। दानिश कनेरिया जो कि उनकी क्रिकेट टीम का एक बॉलर था, अच्छा खिलाड़ी था, भरे मैदान पर और साथ ही खिलाड़ियों की कईयों की क्लिप थी उसमें जो उसे कन्वर्ट होने के लिए कह रहे हैं। मतलब ये खेल में कोई अच्छी सेलिब्रिटी हो उसको भी नहीं छोड़ते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छोटे मोटे जो बेचारे कमज़ोर तबके के लोग हैं वहाँ पे हिंदू हों क्रिश्चियन हों तो उनके साथ क्या करते होंगे, उनकी बच्चियों को उठा लेते। अभी आपने जो वीडियो देखी है उसमें क्लिप थी, वो सिंध की रहने वाली कोई हिंदू लड़की थी, तो मौलवी और कुछ लड़कों ने उसको उठा लिया और कई महीनों तक उसके साथ रेप किया और फिर वो जैसे तैसे उसे कहीं दूसरी जगह ले जा रहे थे तो वो भाग कर और छुप गई और फिर पुलिस के पास वो पहुंच गई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट को चाहिए था कि तुरंत दोषियों को सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए और इस लड़की को इसके घर वालों के लिए सुपुर्द किया जाए। बालिग लड़की है और ज़बरदस्ती उसे उठाया गया है और वो उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया है। तो उसमें उसकी मर्जी तो थी नहीं, मगर वहाँ पर कानून के नाम पर कुछ नहीं है, बस इस्लाम इस्लाम और इस्लाम। सारी दुनिया के इस्लाम का ठेका इन्होंने ले रखा है। अब उस लड़की को कोई सरकारी संस्था है उसके पास भेज दिया है कि भाई जब तक केस फाइनल नहीं होता तब तक इसे रखो, हिंदू लड़की है और अब ये मुसलमान बन चुकी है तो अब हिंदू घर तो वापस भेजेंगे नहीं इसको। और फिर इसमें क्या है कि लास्ट में यही होगा कि उसे किसी न किसी मुसलमान के हाथ पल्ले दे दिया जाएगा और पूरी तरह से इस्लाम में से कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके घर वाले माँ बाप रो रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे और लड़की किस तरह वीडियो में रो रही थी, मगर वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं।
अगर ऐसा हमारे भारत में किसी मुसलमान के साथ कर दिया जाए तो पूरी दुनिया को ये सिर पर उठा लेंगे। पाकिस्तानी बहुत ही दोगले होते हैं। अमेरिका के किसी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने कहा था कि पाकिस्तानी बहुत ही दोगले होते हैं और अगर इनका बस चले तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दें। तो इस तरह का मामला है इनका। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।